मैं काला हूँ। आप हो नवाज? मैंने हाँ मैं ही हूँ। अरे यार फोटो में तो आप कुछ और दिख रहे थे। मैंने कहा यार वो फोटो थोड़ा पुराना है। घिस गया, थोड़ा वाइट दिख रहा था। बोले एक काम करो कल आना। तो फिर कल के बाद फोन ही नहीं आया मुझे आज तक। वो ये सच्चाई है एक्चुअली। जब भी कोई ऐसा ब्रेव करेजियस काम करना चाहते हैं, खुद को करते हुए डर लगता है, हम चाहते हैं कि दूसरा करे। Nobody treated me less or more because I was a woman. They all treated me like a director, whether I was a male or female. So even if there were any issues, they would have spoken to me, and not because I'm a female or you can't tell her that. ऐसे टफ सिचुएशन आती है ना, और जब उनको डील करते हैं आप, तो उसके बाद आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना। फिर आप फिक्र नहीं करते, देखते हैं ठीक है क्या होगा। How do you look at the scenario of the box office pressure that is certainly say prevailing in Bollywood? It's a business, right? आज बॉक्स ऑफिस में भी बिजनेस करते हैं। अच्छी फिल्म चलेगी, खराब फिल्म नहीं चलेगी। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे बॉक्स ऑफिस हो चाहे OTT पे हो। क्या आपने दोनों इंडस्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं काम किया, क्या एक डिफरेंस नजर आता है आपको? वहाँ का सुपरस्टार भी बहुत ही डिसिप्लिन और टाइम पे आना और टाइम पे जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड ऑफ द डे आपकी फिल्म कितनी चली, कितने करोड़ कमाई, वो नहीं होता आपने चॉइस क्या की थी उस वक्त पे। जब लोग करोड़ों रुपया कमा रहे थे अपनी फिल्मों से, उस वक्त पे क्या चॉइस कर रहे थे। कुछ थोड़ा बहुत मिलता है आपको तो उस आसपास के होता है कि यार पुल डाउन करने की कोशिश कर। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with the cast of Costo, and all I can say after seeing the movie is you learn a lot from the film and the journey of the person. So thank you for presenting this piece. Thank you. You know, first of all, Sejal ma'am, I would like to ask, which side do you like the most now, this side or that side? Which side of the chair? Right now, I like this side better because I know that side is also very difficult, but I enjoy this side. Yeah. But you know, I want to ask you, as a female director, right? You are directing the story with a male's perspective. What were the challenges or per se, you know, emotions ran through your mind while you were directing this as your debut project? So I was directing the film and telling the story of a person. So I didn't look at it by lens. I didn't look as a lens. I have a genderless lens. So I don't look at it as a man or a woman. So I was just directing what the character was. So at no moment during the film, anytime I felt that, you know, I'm a woman and I'm directing a male character, and if this film has action or something like this, and I won't be, I don't think any female or a male director should be pigeonholed into what kind of films they should do. I think everybody should be allowed to do whatever films they want and whatever they resonate with. So these are the kind of films I resonate with, so I do that. And I've never looked at it as a male-female perspective. I've never had. Ma'am, you have never looked, but you know, still today, आज भी ना industry में कहीं ना कहीं एक, I would say borderline sexism कहीं ना कहीं है. But as women, when you today say have a voice or an agency, how do you see the times changing? I feel it has definitely changed. Yeah. And like I didn't find any kind of issue in directing this film. I think everybody was supportive and nobody treated me less or more because I was a woman. They all treated me like a director, whether I was a male or female. So even if there were any issues, they would have spoken to me, and not because I'm a female or you can't tell her that. So that is what, but I just feel, of course, it's a fact that, and this you see even in Hollywood, where female directors to a certain extent, you know, it took a lot of time for somebody to, Patty Jenkins or somebody to do a big action film. So I think that's everywhere. Things are changing. Where, you know, at one point people said that female directors should only do emotion, family kind of things. But now I think more and more female directors are doing that, and all over the world that is happening. But they've done the big Marvel films and they've done action films. So yeah. मैंने सर आपके पास आऊँगी, you know, there is a line in this movie कि कॉस्टो के लिए ना उसका काम ही उसका reward है, and with the line of work you have come in recent time, do you feel you have got that reward, the kind of reviews you have been receiving, do you feel rewarded or maybe validated by it? Yeah, I'm very happy that we produced this film, and the ultimate reward is that, you know, when it stays there. और आज से अगर 25 साल बाद में जब मैं अपने आप को एक लेजी चेयर पे बैठे हुए पैर हिलाते हुए चाय पीऊंगा और देखूंगा कि यार मैंने कोस्टा बनाई थी, कितना मजा आता है ना. So that satisfaction a filmmaker gets when, you know, जब उसकी सारे as a team we made the film, what we wanted to make the film we've achieved on the screen. So you know, as a producer, ठीक है, आप ये फिल्म OTT पे ला रहे हो because definitely you want it to, you know, reach the audience, like a maximum amount of audience, right? But today, how do you look at the scenario of the box office pressure that is certainly say prevailing in Bollywood? It's a business, right?
आज बॉक्स ऑफिस में भी बिजनेस करते हैं, अच्छी फिल्म चलेगी, खराब फिल्म नहीं चलेगी, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे बॉक्स ऑफिस हो चाहे OTT पे हो, है ना। OTT पे ये जब फिल्म आएगी, आपने फिल्म देखी है, आप ये सोचिए 135 कंट्री में कितने लोग 1 तारीख को खुश होने वाले हैं जब लोग फिल्म देखेंगे फैमिली के साथ में बैठे, और उनको 400 रुपये का पॉपकॉर्न नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब आप फिल्म थिएटर में देखने जाते हो, आप लेते हो ना वो चीज़, तो इट्स अबाउट योर डिसीजन विच फिल्म यू वांट टू वॉच इन द थिएटर, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं। अब इनकी बात में हम जो नेक्स्ट फिल्म करने वाले नवाज भाई की, वो थिएटर में है, क्योंकि वो थिएटर के लिए बनाई जाएगी। इस फिल्म को जब बनाई गई, इतनी बड़ी बन गई, हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन हमने पहले से सोच के रखा था कि हमको उस दिन पे, दैट वेरी फर्स्ट डे, इनकी कहानी एज अ रियल हीरो हैज़ टू ट्रैवल मोर देन few hundred or thousand or lakh लोगों से, 135 countries में, people sitting anywhere would see a story of an Indian custom officer. This is the first film which has been made on the custom office. Yes. बराबर है ना। इंडिया के उस हीरो की, उस लाल की कहानी लोग कहाँ पे भी बैठ के देखेंगे। That's the take basically. नवाज सर, कमिंग टू यू, जब ये मैंने मूवी देखी ना, मेरे को आपका ही एक डायलॉग याद आया फ्रॉम बजरंगी भाईजान। यू सेड कि नफरत ना बड़ी आसानी से बिकती है, राइट? एंड कॉस्टो's कैरेक्टर इज सच, नो डाउट ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, बट वो एक इंसिडेंट टर्न्स डाउन हिज लाइफ। हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस फैक्ट दैट ओके वी आर लिविंग इन सच अ टाइम्स टुडे जहाँ क्रिटिसिज्म बहुत आसानी से स्प्रेड होता है, वेयर इज बोलते हैं ना अच्छाई आपकी ओवरलुक हो जाती है। बिल्कुल आप सही बात करें। बट कहीं ना कहीं आप जब कर रहे थे ये फिल्म, डिड यू रेजोनेट विद दैट फैक्ट? वो तो हमेशा वो चीज़ें तो शुरू से पता है, हमेशा रहती हैं, है ना। और ऑफ कोर्स जो मेरा कैरेक्टर भी है, तो वो इतनी अच्छे कॉज के लिए पीछे भाग रहा है, एक अच्छे कॉज के लिए, और लेकिन वो फिर उसका एक डायलॉग भी है ना कि हर आदमी चाहता है कि ब्रेव और ऑनेस्ट ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, बाजू वाले घर में। तो उसने ये सच्चाई है एक्चुअली। हम लोग जब भी कोई ऐसा ब्रेव करेजियस काम करना चाहते हैं, खुद को करते हुए डर लगता है, हम चाहते हैं कि दूसरा करे। हाँ, क्योंकि रिस्क उस पे है ना, रिस्क हम कंफर्ट जोन में सारी चीजें करना चाहते हैं। बट एज एन एक्टर वो रिस्क और हो जाता है, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी वो कहते हैं ना, एक प्रेशर रहता है या एक डर रहता है कि ओके मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं कहीं ना कहीं ऑनेस्टी से ये क्राफ्ट करना चाहता हूँ, बट वो एक जजमेंट्स का डर आज भी बना रहता है एज एन एक्टर। या नहीं, मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, क्योंकि लाइक जैसे थिएटर में भी किया, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ही करते थे, और जब फिल्मों में भी वही है, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट। एक लाइफ मिली है, एंड ऑफ द डे आपकी फिल्म कितनी चली, कितने करोड़ कमाई, वो नहीं होता, आपने चॉइस क्या की थी उस वक्त पे, जब लोग करोड़ों रुपया कमा रहे थे अपनी फिल्मों से, उस वक्त पे क्या चॉइस कर रहे थे, ये देखा जाता है। आज से जैसे विनोद जी ने कहा कि मैं जब चेयर पे बैठ के चाय पीऊंगा और पैर को हिलाता, वो कि ये कोस्ता मैंने बनाई थी, तो मुझे भी तो लगा कि उस वक्त पे मैंने, यार ऐसी बात नहीं कि चॉइस अपनी समझ के हिसाब से चॉइस ठीक ठाक ही चॉइस की थी, ऐसी बात नहीं। तो हम भी तो बैठ के चाय पी के इनके साथ बैठे, अरे वही करेंगे ना। But you know, if I also resonate your character with on this part कि you know कॉस्टो ना बहुत easily tough time से डील करता है। हाँ. मतलब he is not easily bothered, या बोलते हैं ना, एक उनको कभी भी झटका नहीं लगता। He takes life as it comes, right? How is Nawazuddin as a person in real life? क्योंकि सर आपकी struggle सबको पता है। The position you are at today, you know what circumstances has shaped you where you are sitting? I think वो बहुत ना, वो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं आदमी को। आप शुरू में जब डरते हो ना, बहुत डरते हैं आप चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप डरते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। लेकिन जब वो आती है ना, वो ऐसे टफ सिचुएशन आती है ना, और जब उनको डील करते हैं आप, तो उसके बाद आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना। फिर आप फिक्र नहीं करते, देखते हैं ठीक है क्या होगा, आने दो सिचुएशन, इतनी मुश्किल सिचुएशन जो है ना फेस कर लिया, अब ये क्या बची है टाइप, ये भी कर लेंगे टाइप में। बट यू नो, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हो ना इसमें मूवी में, तो देर आर पीपल अराउंड यू हु आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, राइट? आपकी लाइफ में वो क्या मोमेंट्स रहा है जहाँ यू नो पीपल रियली ट्राइड टू पुल यू डाउन एंड नाउ यू आर लाइक कि ओके आई हैव कम दैट फेज? सी मैं बताऊँ आपको, हर जगह होता है, रियल लाइफ में भी होता है, आपको हर जगह होता है। वो जब आप कुछ कर रहे होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिलता है आपको, तो आसपास के होता है कि यार पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप फोकस्ड हैं अपने काम को लेके, पैशनेट हैं अपने काम को लेके, फिर आप कोई कुछ भी कहता रहे, आप चलते जाइए,
कोई उसमें कोई एक वक्त आता फिर आपको मान लेते हैं लोग कि नहीं भाई ये उसका पैशन है या जिद है उसकी, है ना, वो ही लेके उसको है। उतनी जिद शायद हम लोगों में नहीं थी, इसलिए हम बात करते रह गए। ये करता था, हम बातें करते थे, जो करता था वो कर गया, हम बातें करते रह गए, टाइम ऐसा हो जाता है। बट आप लोग तीनों से एक और पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी, द टाइम्स वी आर इन एज अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, राइट, अ लॉट ऑफ चैटर अगेन इज गोइंग अबाउट कि ठीक है कंपैरिजन हो रहे कॉन्स्टेंटली साउथ सिनेमा से, क्योंकि हाउ देयर फिल्म्स आर परफॉर्मिंग वेल, मे बी बॉलीवुड इज समवेयर और द अदर गोइंग रॉन्ग। आप तीनों का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज पे या इस नैरेटिव पे जो अभी क्रिएट हो रहा है? See, I don't have that perspective because I feel I think it's all one film industry only, and there are good films, bad films making everywhere. So I don't know why this division is there. I don't, like sometimes you want to watch a Malayalam film, you want to watch a Gujarati film, or you want to watch Marathi. So I don't know why there should be a distinction. It's one country and one films are being made, and we should be able to enjoy and even applaud good films from everywhere. Why should it be that we look down upon any kind of film? So I think they all are the same cinema, and we should just enjoy all of them. So Yeah, I agree. It's all Indian film, but we have to understand one thing: filmmaking is not easy. It requires a lot of efforts from all of them. Story idea germinates करने से लेके, so it's a journey you should enjoy. और एक अच्छी फिल्म होती है तो और मजा आता है। So I think फिल्म को उस तरीके से देखना चाहिए। और क्या था, पहले तो फिल्म डब नहीं हो पाती थी ना, आज वो आ गया है। पहले साउथ की फिल्में हमको लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी, अब वो हिंदी में डब हो जाती है, या नीचे अपना सबटाइटल आ जाती है, तो यू वॉचिंग। अदरवाइज पहले तो आप पिक्चर देख ही नहीं पाते थे। सो वी आर लकी दैट वी हैव एज अ इंडियन फिल्म, देयर आर सो मेनी फिल्म्स। मतलब पंजाबी फिल्म देखिए, मराठी फिल्म देखिए, दे ऑल गुड फिल्म्स है। क्या बिजनेस रीजनल फिल्म्स हो, हाँ बहुत सारी। तो हर एक अभी सोचता उस तरीके से, जहाँ का जो होगा वो लिखेगा उस तरीके से, पर कहानी तो है। आई डोंट नो ये नैरेटिव कहाँ से आता है, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लगता है कि कहीं की भी हो अच्छी फिल्म होती है वाकई, है ना, वो सब पसंद करते हैं अच्छी फिल्म को। बट क्योंकि आपने दोनों इंडस्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं काम किया, क्या एक डिफरेंस नजर आता है आपको? डिफरेंस ऐसा कोई ख़ास नहीं, बट हाँ यही है कि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है अपनी उस चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को लेके। अब हम हो रहे हैं ऑर्गेनाइज उन सब चीज़ों को लेके। हमारे यहाँ जो जैसे एक वहाँ का सुपरस्टार भी बहुत ही डिसिप्लिन और टाइम पे आना और टाइम पे जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। Some quick questions for all three of you. I'll start with you, Sejal ma'am. Okay, producing or directing, which is like the most challenging role for you? Directing. Yeah. And why would you say that? Because I think direction is where I have to get everybody's vision together, and I found it's so creative and it's very challenging. I mean, for me at least, and I enjoyed that process much more. Even though it's more challenging, I enjoy directing much more. Okay, a quality of Nawazuddin as an actor you admire? I think Nawaz is somebody who, he's somebody who elevates the script. He elevates the film. So when you give work with him, what the script is there, he will elevate it to another level. And his performance, I think that everybody knows that he's just excellent, and he just becomes the character. True. So that is what is the best thing about him. A director whose work you look up to? Actually, a lot of directors I really like, but most of my directors I like. I like Guy Ritchie, and I watch Quentin Tarantino, those kind of films much more. And I, of course, in India, like a lot of good South directors, and a lot of them I really enjoy watching. And an actor you are really looking forward to collaborate with? I think any good actor. I don't have one specific actor. It's not any good actor. I want to work only with good actors. I always feel that there's no, I never say I want to work with a star. I just want to work with any good actor. So right now, I would say that if I have a chance, I want to work with Nawaz again. Because I feel that after I worked with him, he spoils you so much as a director that it's very hard to work with another actor, honestly. Like, I really enjoyed working with him, and I wish I can work with him again. Exactly. Vinosa, coming to you, a genre you would really like to produce? It's not a genre. We are a studio. हम कहानियों पे काम करते हैं. If that is the need of the hour, or we think that there are viewers who want to watch a story, which an actor can perform, that's the film for us. Which a director can make the film for us. I tweak the question. और कौन सी एक बोलते हैं ना अनसंग हीरो की कहानी आप लाना चाहोगे या प्रोड्यूस करना चाहोगे? बहुत सारे हैं. लेकिन कहना कि मतलब आज 140 करोड़ लोग हैं, तो कहानियां तो हैं, है ना.
उस कहानी को किस तरह से अच्छी लिखी गई है और निभाएगा कौन, दैट्स द क्वेश्चन। मैंने कहा कि फिल्म बनाना आसान नहीं है। वैसे कहानी आपको भी 4 ऐसी कहानी मालूम होगी, अरे वो क्या लाइफ जी है इसमें, इट्स नॉट इजी, एंड देन लक फैक्टर है। Yeah, true. Okay, a myth about producers you would like to burst. सॉरी, A myth about producers you would like to burst. myths, I don't know what myth ना, पहले मुझे पता नहीं है, but a producer is he is the father of the film, okay, and उसके लिए सब कुछ पिक्चर ही है, जैसे डायरेक्टर है ना, तो वो उसको हर चीज़ वो करने में मज़ा आती है जो एक फादर को एक बच्चे को देने में मज़ा आती है, और वो चाहता है कि वो बड़ा बन के जब वो फिल्म बन जाए, ही इज़ द मोस्ट प्राउडेस्ट गाय, है ना। आई थिंक दैट समबडी हैज टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे कभी कभी देखते हैं कि प्रोड्यूसर को वो प्रॉब्ली इज्जत नहीं मिलती है, तो या तो उसके रॉन्ग डूइंग पे नहीं मिलती होगी, बट आई हैव बीन लकी दैट ऑल द एक्टर्स whom I work with, you know, they have been working as a producer with me. मतलब अगर ये वो चीज़ फिल्म के लिए चाहिए तो they go all out, and that's very important. And on that note, if given a chance, which actor would you like to collaborate with or you want to work The with? script has to call for an actor. अदरवाइज तो किसी के नाम लेके फिर बनवानी पड़ेगी पिक्चर उसके। इसको सुन के तू अभी इसको सुन। One thing you feel should change about the industry. About the Industry, like one thing you feel should change. changes are always, it's inevitable. अब changes have to be for good. Yeah. For good बोलते हैं, changes have to be for good. राइटर्स को ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, उनकी लिखी हुई कहानियों पे अच्छे प्रोड्यूसर्स चाहिए, और जो ऐसे एक्टर्स को जो चाहिए, या ऐसे डायरेक्टर्स को, डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, they should be given that. I think that's. Thank you, sir. Nawaz, for coming to you. Okay, one film you wanted to do but you could not. Maybe dates नहीं मिल रही थी या schedule match नहीं हुआ. Any reason? बहुत सारी फिल्में हैं जो डेट्स की वजह से नहीं कर पाया मैं। Yeah. Okay, a film you regret doing. अब नाम थोड़ा ना लूंगा मैं। अच्छा, जिसमें आपको लगता है कि okay, I could have performed more better, like. वो तो हर फिल्म में होता है, Yeah. वो हर फिल्म में होता है, हर फिल्म में होता है। जब मैं बाद में देखता हूँ फिल्म को, करे यार इसमें और रह गई, थोड़ा सा रह गया, वो होता है, हर फिल्म में होता है। That only a good actor can say. Say that. नहीं नहीं, वो आप खुद बोलोगे ना, मेरे लिए तो जैसे मैं पीछे, अरे क्या कमाल काम किया, आपको ही लगेगा ना, तो ऑलवेज एन एक्टर हैज टू, यार मैं इससे थोड़ा अच्छा करता हूं, और हो सकता था। Okay, an actress you wish to collaborate with. एक्ट्रेस, Yeah. मैं जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ एक्ट्रेस राधिका आप्टे, उसके साथ काम अभी सुबह काम करके आया हूँ। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और ऑफ कोर्स एक एक्ट्रेस, अब ये आप बोलेंगे कि मैं इसलिए क्योंकि मेरी फिल्म में बात करूँ, मैंने जब प्रिया के साथ काम किया, जब मैं कर रहा था उसके साथ, मुझे नहीं मालूम था, मतलब मुझे लगा कि हाँ ठीक ठाक है, एक्ट्रेस अच्छा कर रही है, ऑफ कोर्स अच्छा थिएटर की एक्ट्रेस है, करेगी अच्छा, लेकिन फिल्म में बिल्कुल ऐसे निकल के आ गई, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रैंकली स्पीकिंग। Okay, worst reason you have heard for rejection. वर्स्ट रीजन, Yeah. मैं काला हूँ। नहीं, उसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। क्या हुआ था, एक बार किसी ऑफिस में मेरा फोटो देख के मुझे सिलेक्ट कर लिया, और बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 15 साल पहले जब म्यूजिक वीडियोस चलते थे ना तब, हाँ, मुझे एज ए हीरो सेलेक्ट कर लिया उसमें, और उनको लगा यार फोटो तो बहुत अच्छा। उसमें क्या हुआ था, पुराना फोटो तो वाइट हो गया था मेरा, पड़े कलर उतर गया था उसमें से, है ना, तो वो फोटो उनके पास पहुंचा, उनको लगा यार ये मॉडल तो अच्छा है, तो मैं थोड़ा पतला दुबला सा, थोड़ा अच्छा ठीक ठाक सा दिखता था, तो मुझे बुला लिया उन्होंने। जब मैं गया उनके पास तो किसी ने बताया कि नवाजुद्दीन आ गया, नवाज आ गया, नवाज कहाँ है, और मैं वहीं खड़ा होता कहाँ है नवाज कहाँ है, मैंने कहा हेलो भाई साहब मैं ही हूँ, है आप हो नवाज, मैंने हाँ मैं ही हूँ, अरे यार फोटो में तो आप कुछ और दिख रहे थे, मैंने कहा यार वो फोटो थोड़ा पुराना है, घिस गया, थोड़ा वाइट दिख रहा था, बोले एक काम करो कल आना, तो फिर कल के बाद फोन ही नहीं आया मुझे आज तक वो।
Well, this was really nice and thank you so much for bringing the story again. And I really wish first मेरे को लोग देखे इसको and really thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very Thank you. much.